সম্বন্ধে আমাদের অনেকের অনেক বক্তব্য আছে। ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি সেটাকে প্রথমেই জানতে হবে। ধর্ম যে আমরা শুনছি, পড়ছি, দেখছি, কিন্তু ধর্ম তার থেকে অনেক আলাদা। এই কথা সাধারণ লোক বুঝতে পারে না বলে বিভ্রান্ত বোধ করে। তা এক কথায় ধর্মকে বলেছে ধর্মই হচ্ছে সত্য, সত্যই ব্রহ্মা। তা এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে সমস্ত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত সবাই ধর্মকে মানে, ভিতরে কতটা মানে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু বাহ্যিক তরফ থেকে সবাই সেটা কি গ্রহণ করে। একজন দিল্লির প্রফেসর, সে রাশিয়ান লেডিকে বিয়ে করে দিয়েছে। সে বিদেশি এবং সেখানে ধর্ম টর্ম কেউ মানে না। সেই রাশিয়া হচ্ছে কমিউনিস্ট দেশ, তারা এইসবকে মানে না। তারা কর্মকেই প্রাধান্য দেয়, কর্মই শ্রেষ্ঠ। তা এখন এখানে রাশিয়ান লেডিকে যখন বিয়ে করে এনেছে, তখন তার প্রফেসরদের সবাইকে ডেকেছে, তার বন্ধুদের, তার বন্ধুরা এসছে, সবাই তার কথার মাঝখানে, তোমরা তো রাশিয়ান, তোমরা তো ধর্ম টর্ম মানো না। এবার রাশিয়ান লেডি, সবাই বলছে তুমি ধর্ম জানো না, তুমি কি করে মানবে, তুমি, সবাই একই কথা বলছে। তখন উনি বিভিন্ন বই নিয়ে এলেন, বই নিয়ে এসে পড়াশোনা শুরু করলো যে ধর্মটা কি জিনিস। পরে এইটুকুই বুঝতে পারলো যে ট্রু ইজ গড, সত্যিই ভগবান। আর ট্রুই হচ্ছে আমাদের ধর্ম, সত্যিই ধর্ম, আর সত্যিই ব্রহ্ম। এবার সমস্ত, সে বিয়ে করে এসছে, সমস্ত প্রফেসরদের নিমন্ত্রণ করেছে যে আজকে আমার বাড়িতে তোমাদের নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার সময় সবাই আমার বাড়িতে খাওয়ার করবে। কটায় আসবে তোমরা? 9টা, 9:30? বলে অক্রোশ এসে যাবো আমরা ঠিক টাইমে, 9টা 9:30টার মধ্যে এসে যাবো। রাশিয়ান লেডি সব রান্না বান্না করে বসে আছে। 9টা বেজে গেল, 9:30 বেজে গেল, 10টা বেজে গেল। হঠাৎ ভাবছি যে কেউ আসবে না নাকি, কি অসুস্থ হয়ে পড়লো, না গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো, না গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। উনি চিন্তায় বারান্দায় ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ দেখছি 10:30টার পর থেকে সব ঢুকতে শুরু করছে, এবং ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে এবার রাশিয়ান লেডি সবাই আসার পর বলছে তোমাদের কি ব্যাপারে এত দেরি হলো? বলে দিস ইজ ইন্ডিয়ান স্টাইল, এটা ভারতবর্ষের সময়। যা আমরা বলি 9টা 9:30টায় আসবো, এলাম আমরা 10:30, 11টা, 11:30। এটা আমাদের, যেটা বলি সেটা করি না, আর যেটা বলি না সেটাই করি। রাশিয়ান লেডি এবার তাদেরকে বলছি যে তোমরা কেউ ধর্ম মানো না,
তোমরা সত্য কথা বলো আর কাজে তোমরা মিথ্যাচার করো, আর আমরা সত্য বলি আর সেটাই করি, আমরাই ধর্মকে মানি। তো সেরকম আমাদের অবস্থা সেরকম, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই, কিন্তু আমরা মেনে চলেছি। আমি হাসি, সেটা কোথায় যাবে, কিন্তু জানেই না কিছু। এরা যাকে ধরে এগাচ্ছে তারা তো কিছুই জানে না। যারা সত্যকে জানেই নি তারা সত্যকে ধরবে কোথায়? সে তুমি কৃষ্ণকে ডাকো, রামকে ডাকো, সে শিব ঠাকুরকে ডাকো, কালী ঠাকুরকে ডাকো, দুর্গা ঠাকুরকে ডাকো, যাকেই ডাকো না কেন, কিন্তু সত্যটা তো উপলব্ধি করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ গেছে হায়দ্রাবাদ, তখন নবাব তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বলে তুমি খুব বুদ্ধিমান, তুমি এই ধর্ম ধর্ম করে কি বেড়াচ্ছ, এই মূর্তি পূজা, এই পূজা, সেই পূজা, এগুলো কি করে বেড়াচ্ছ? তখন সবাই এই কথাটা জানে যে তার একটা ফটো লাগানো ছিল তার বাবার। তো এবার বলে এটা কার ফটো? বলে নবাবের বাবার। এই ফটোটা নামাও। एवं फोटो उतारने के बाद सब बोला जी ये नवाब का पिताजी है। बोले कहाँ ये पिताजी है, ये तो कागज और रंग है, या पिताजी कहाँ दिखाई दे रहे? इसमें तो कागज और रंग है, और इसमें क्या लिखा है जो ये नवाब का पिताजी है? चलो सिपाही को बुला के बोला इसमें थूक दो, इसमें पैर से कुचल दो। ना पैर से कोई कुचल पाए ना थूक पाए, क्योंकि उसमें वो सच उसके पिताजी को दिखाई दे रहे, उसके पिताजी को दिखाई दे रहे हैं। जो इस फोटो में उसका पिताजी है, तो बोलते हैं हमारा जो मूर्ति है वो हमारा चिंतन करा देते हैं सच को, जो इसके पीछे सच है। फोटो के पीछे जैसे पिताजी है नवाब का, इसीलिए हम श्रद्धा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार हम जो मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति वो ब्रह्म नहीं है, वो सच नहीं है, लेकिन सच को हमको अंदर अनुभव करा देती है, ये सच है। इसी प्रकार हम लोग भी झूठ को सच मानता हूं, संसार को, हर चीज को हम सच मानता हूं। किस लिए? जो इसका पीछे भी सच है। क्या सच है? जैसे एक शीशा का अंदर एक आदमी खड़ा है, तो बाहर भी है अंदर भी है, तो शीशे का अंदर जो है वो सच है ना झूठ है? बताओ। शीशे का अंदर जिसको दिखाई दे रहा है वो सच है ना झूठ है? क्यों? जो बाहर जो है तो वो तो सच है, तो अंदर भी जो दिखाई दे रहा है वो तो सच है। अगर वो आदमी हट जाएगा तो शीशा में कुछ है? तो इसी प्रकार सच का प्रतिबिंब है, सच का प्रतिबिंब है वो शीशा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में सच और ब्रह्म है, धर्म है, इसीलिए संसार दिखा रहे हैं।
क्या क्या धर्म से उत्पत्ति हुआ? महाकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये पांचों शक्ति का उत्पत्ति किया। ये कहां से उत्पत्ति हुआ? सच, सच से। और ये सच, ये महाभूत से हम लोग का ये पंचभौतिक शरीर का उत्पत्ति हुआ। जैसे ये प्रकृति जैसे चेंज होते रहते हैं, इसी प्रकार हमारा देह का दर्द परिवर्तन होते रहते हैं, और ये परिवर्तन अंतिम में विनाश हो जाते हैं। ये झूठ का लक्षण है। जो परिवर्तन होता है वो झूठ है। सच कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जो सच कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको ढूंढो, वो कहाँ है? हमारा मन का परिवर्तन हो रहा है, हमारा बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है, हमारा शरीर का परिवर्तन हो रहा है। इस संसार में हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। तो आप बताओ, महाकाश कौन से धर्म का है जिसमें सारी सृष्टि पकड़ के रखे हैं? ये अग्नि कौन से धर्म का है? सब धर्म में अग्नि का प्रकाश है। वायु सबका ऑक्सीजन दे रहे हैं। कौन से धर्म का है? पानी कौन से धर्म का है? बोल सकते हैं? पेड़ पौधा, कीट पतंग हर मनुष्य का प्यास बुझाते हैं। धरती, जो सभी धरती के ऊपर खड़ा होके कर्म करती है। धरती किसका है? किसी के नहीं होते हैं। तो ये जो महाशक्ति है, अनंत काल से चल रहे हैं, जिसके लिए हमको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। हमको प्रकाश सूरज का जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब लाइट का बिल देना पड़ता है, गैस का बिल देना पड़ता है, आपका जो भी अग्नि का काम करती है सबको पैसा देती है। लेकिन भगवान जो लाइट दे रहे, आजकल जैसे सोलर लाइट निकल गया, सोलर कुकर निकल गया, सबको दे रहे हैं। लेकिन भगवान के कुछ मांग रहे हैं आपसे? आपको इतना बड़ा शक्ति है, अनायास ही आपको मिल रहा है, इसीलिए आपको कोई भी कदर नहीं है। लेकिन ये भी एक दिन विनाश हो जाएगा। ये पंचभौतिक शक्ति जैसा हमारा देवा है, इसको सच पकड़ के रखे है। ये देहो जैसे विनाश हो जाते हैं, और विनाश होती पंच तत्व, पंच महाशक्ति में विलीन हो जाती है। तो कौन रह जाते हैं? सच रह जाते हैं। सच को कोई विनाश नहीं होता है। वही मैं हूं, वही मैं हूं। तो आपको अपना खुद जानने के लिए आपने आया है। आप नहीं जानते आप कौन है। अब तो अभी मैं हूं। एक बाहर का दुनिया में जो काम करते हैं वो मैं हूं, और एक रात को डीप स्लीप में अब सो जाते हैं, तो आपको देह, मन, बुद्धि, ये संसार सब कुछ छूट जाते हैं डीप स्लीप में। तो उस वहां आराम से शांति से सो रहे कौन? मैं। जहां ये संसार नहीं है, डीप स्लीप में आप देखिएगा, ये संसार कुछ भी नहीं रहते। ना देहों का बोध होते हैं, ना आसपास कौन लेटा हुआ किसी का बोध नहीं होते, ना मन होते हैं, ना बुद्धि होते हैं। तो डीप स्लीप में आप क्या चीज का अनुभव कर रहे हैं?
जो मैं आराम से सो रहा हूं, मैं शांति से सो रहा हूं, तो शांति आराम कहाँ है? जो मैं हूं, जो अंदर जो मैं हूं, बाहर का मैं, इस संसारिक काम में आपको कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना अशांति, कितना बेचैनी लेके मन, बुद्धि, देहो में घूमते रहते। जब डीप स्लीप हो जाते तो सब कुछ छूट जाती। तो जहां झूठ खत्म होता है, जहां मैं अपने को खत्म कर देता हूं, वहां से असली मैं को जानता हूं। तो मैं कौन हूं? तो ऐसी प्रकार हम लोग का छोटा छोटा घटना से बताते हैं, जो सच को जानना ही धर्म है। तो धर्म क्या है? सच है, और सच ही परमात्मा है। परमात्मा किस लिए बोल रहा है? आपका अंदर जो आत्मा है, उसका अंदर क्या रूप है, क्या आकार है? तो वही भगवान बोले, ये तुम्हारा रूप क्या है? अर्जुन पूछ रहा है, किम तत् ब्रह्म, तुम्हारा ब्रह्म रूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। जहां सत है वहां चेतना शक्ति है, जहां सत है वहां आनंद है। तो ये तीनों शक्ति आत्मा का है। इसमें भगवान कभी भी गीता में ये श्री कृष्ण वाच नहीं लिखा हुआ है। हर इसमें लिखा हुआ है, जे धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच लिखा हुआ है, लेकिन भगवान उवाच लिखा हुआ है। भगवान माने शक्ति, पूर्ण शक्ति को बोल रहे हैं, जहां कुछ किसी का नाम, किसी का रूप नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवान उवाच है। अब गीता खोल के देख लो, लेकिन कहीं कृष्ण उवाच नहीं है। तो भगवान जानते हैं, जो एकम अद्वितीयम, मैं एक हूं, दूसरा कोई है नहीं। हमारे एक बहुत सब, जितना भी रूप दिखाई दे रहे सब एक है। तो इसी प्रकार हम लोग का जो सिद्धांत है, एक को जान लो तो सबको जान जाओगे। तो यही वेदांत की बात रामकृष्ण परमहंस जी बताया। जो हांडी में चावल पक रहे हैं, तो सीजा कि नहीं सीजा, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो चावल को दबा के देखना पड़ेगा। तो हांडी का एक चावल को दबाने से सारी हांडी का खबर पता चल जाती। आप एक को पकड़ो, एक ही सबका रूप है। हम लोग का गुरु महाराज जी क्या बोला? जो तुम इस संसार को जो जड़ है, उसमें पानी डालो। जो पेड़ का अब पानी कहाँ डालती है? क्या पत्ता, टहनी, फल फूल में? तो हर आदमी बोलते जड़ में पानी डालो। जड़ में पानी डालने से क्या होता है? वो हर वही पानी हर टहनी, पत्ता, फूल, फल में पहुंच जाती है। तो इसीलिए जड़ तो दिखाई नहीं देते, लेकिन आप जाके डाल देते हैं। भगवान को मूर्ति में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप उसको
अर्पण करते हैं, उसी का नाम से अर्पण कर रहे हैं। जो भी देव देवी का आप अर्पण कर रहे हैं वो एक ही जगह जा रहे हैं। तो इसी कारण से आप सिद्धांत तो ले लो, वो शिकारी का भाविक, जो अपना लक्ष्य एक को बनाओ, हजारों बनाओगे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकते रहेगा। अगर सिद्धांत तो एक होगा, सच एक है और सच में ही चेतना है और चेतना ही आनंददायी है। हमने जब लंदन में गया था, हमको देख के वो सब बोला, हंसने लग गया। बोले आप लोग का हिंदू का बहुत से देव देवी है। हमने साफ बोला संसार में है तो एक है, दूसरा कोई नहीं है। देश में हो क्या विदेश में हो, क्या कोई भी जाति में हो, एक ही शक्ति है, दूसरा कोई शक्ति है ही नहीं। वो अलग अलग भावना हम लोग को भ्रमित करते हैं, वही हम लोग को द्वंद्व देश तैयार करती है। लेकिन जिसका एक का ज्ञान हो गया, वही ज्ञान शांति देते हैं, सुख देते हैं। हमने बोला भगवान का रूप क्या है आप बताओ, तो यही है जो भगवान सच चित आनंद स्वरूप है। तो आपका देह सच लगता है, आप चैतन्य है, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, किस शक्ति से कर रहे हैं? अब आनंद ले रहे हैं, खा के आनंद, देख के आनंद, सुन के आनंद, हर चीज से आनंद ले रहे हैं। सचित आनंद स्वरूप पेड़ पौधा में है। बीज को हम सच्चा सोचते हैं, बीज में क्या पेड़ दिखाई देते हैं? न तोड़ ताड़ के देख सकते हैं। तो पेड़ बीज में पेड़ है, यही विश्वास से हम उसको लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं, उसमें मिट्टी में लगाते हैं, पानी भी डालते हैं, सूरज का लाइट भी पड़ते हैं। ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो बीज से अंकुरित होते हैं, तो सच का अनुभूति होता है, देखो बीज सही है। और वही बीज से अंकुरित होने के बाद चेतना शक्ति है, इसीलिए वो बड़ा हो रहा है। और बड़ा होने के बाद वही पेड़ जो फल फूल दे रहे हैं, उसी से आपका आनंद दे रहे हैं। तो सचित आनंद स्वरूप ये वनस्पति है, ये पेड़ पौधा है, ये पुष्प पक्षी है। जिसमें चेतना शक्ति है वो वहां सच है, जहां चेतना शक्ति है वहां आनंद है। तो इसीलिए ये 84 लाख जोड़ी में वही एक, वही ब्रह्म शक्ति विराजमान है। तो वही बोलते हैं सर्वम कृत ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म विराजमान है। गुरु जी इस बात को और भी सरल बात से बताया। गुरु जी ने क्या बोला, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो रोता है, वह हंसता है। कोई इंग्लिश में नहीं रोता है, ना इंग्लिश में हंसता है। वह हंसता है ना, उर्दू में हंसता है ना वो रोता है, ना बांग्ला में हंसता है ना वो रोता है। किस भाषा में रोता है, किस भाषा में वो हंसता है? तो सबका एक ही होता है। सब बच्चे को हंसना रोना एक ही प्रकार होते हैं, वो किसी भी देश का हो। दूसरा है रंग अलग अलग है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का मीडियम है, लेकिन काटो तो उसमें से खून ही निकालते हैं। जब रोता है तो आंख से पानी टपकते हैं।
देखो सब में पानी टपकते हैं। ना किसी का सफेद रंग है तो दूध टपकते हैं आंख से। हाँ, तो फिर तो सबका अंदर एक ही चीज है। तो यही है, गुरु महाराज जी बोला, हंसना रोना सुख दुख सब एक ही प्रकार है। हर मनुष्य को जब दुख होता है तो रोता है, जब आनंद आते है तो हंसता है, सुख होता है तो हंसता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है वो रोता और हंसता हुआ अलग अलग है। तो इसलिए इस संसार में एक ही सच है और वही सर्वव्यापक है। इसीलिए हम जो शीशा में खड़ा हुआ है वो मेरा प्रतिबिंब है। उसमें शीशा में खाना खिलाओ तो उसको पेट नहीं भरेगा। मतलब सच में पेट नहीं भरता है। अगर उसमें शीशा में उसको मुंह में क्रीम लगा दो, क्या उसको सजा दो, क्या वो असली जगह पड़ेगा? तो इसी प्रकार जो हम बाहर का चीजें में ही फंसा हुआ है, वही हम पूजा कर ले तो वही सब कुछ हो गया। नहीं, उसको असली जगह सच को जानना पड़ेगा। जो सच कहाँ है, जब सच को जान जाओगे तो हर जगह तुम उसी को दिखाई देगा। चैतन्य बाबू जो दिन सच को उपलब्धि कर लिया तो क्या बोले, जथा जथा पड़े दृष्टि सिताई दिखी इष्ट मूर्ति। पेड़ पौधा कीट पतंग पुष्प पक्षी सबको पुकार के बोले, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो इसी प्रकार जब उसको ज्ञान हो जाते हैं, अभी दर्शनम ज्ञानम, सब भेदभाव खत्म हो जाती है। तब भेदभाव खत्म हो जाते हैं तो एक में सब समा जाते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को बोले, देख अर्जुन, जब ज्ञान होते हैं ना, जैसा बरसात का पानी, सब एक हो जाती है। हाँ? कौन गंगा का पानी है, कोई नदी का पानी है, कोई तालाब का पानी है, कोई कुएं का पानी है, कोई नाली का पानी है, सब एक हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग का उद्देश्य क्या है? गंगा का साथ अपने को जोड़ना है। गंगा से कोई भी नाली, कोई भी गंदा पानी उसके साथ जुड़ा जाए तो गंगा का साथ चलते हुए वो पवित्र निर्मल पवित्र हो जाते हैं। लेकिन गंगा पानी लाके अगर नाली में डाला जाए तो वो गंगा पानी नाली को पवित्र नहीं कर सकते। लेकिन नाली का पानी अगर गंगा से जुड़ जाते हैं तो वो चलते हुए सब पवित्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आपका अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्मा रूप से आपका अंदर विराजमान है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिससे आप ये देह को सच महसूस करते हैं, ये देह को अपना चेतना स्वरूप अनुभव कर रहे हैं और इसी से आनंद ले रहे हैं। तो वही आत्मा जब चला जाती है और देह का अंदर कुछ भी नहीं रहते, तो वही सच्चिदानंद आत्मा का साथ जोड़ने के लिए आपको बोला, जो तुम्हारा सत्ता को उस परमात्मा से जोड़ दो। भगवान गीता में अर्जुन को यही बोला, हे अर्जुन, तो तपस्या ज्ञानी कर्मी मत मत तस्मात जोगी भाव अर्जुन, तो मेरा से जुड़ ले अपने को। जैसे बिजली का तार बाहर से जा रहे रोड से, उसमें पावर है और उसमें क्या है, एक शक्ति नहीं, सर्व शक्ति समन्वय दे। बिजली का तार का साथ अपना घर का तार जोड़ दिया
अब उसी का साथ जोड़ने से जब पावर आ गया तो पावर में क्या है, उसमें लाइट भी चल रहे, पंखा भी चल रहे, हीटर भी चल रहे, फ्रिज भी चल रहे, कूलर भी चल रहे, अपना हर चीज लाइट का चल रहा है। इसी प्रकार भगवान के साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन में वो शक्ति प्राप्ति करते हैं जो आपको और कहीं कष्ट दुख तकलीफ नहीं होते। सब प्रकार शक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं जो आपका जीवन का सुख शांति आनंद प्रदान करते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में ईश्वर का। हर हर